So in our last lecture, in the last session, we have talked about the control word format for your this one 8254. Okay, and we have seen there are total 6 modes of operation of 8254: mod 0, mod 1, mod 2, mod 3, mod 4, and mod 5. Now in the control word register, we have seen some of the important bits. Okay, so the bits were, if you see, the bits were BCD, the D0 bit, that is the first bit, that is BCD. When it is 1, it is a BCD count. If it is 0, it is a binary count. Then your D1, D2, and D3, that is M0, M1, M2. So these 3 bits are used to know which mode you are operating your 8254. So if it is 000, it is mod 0, and if it is 101, it is mod 5. So these 3 bits are dedicated to tell you what in which mode your 8254 is working. Then you have WR0, RW0 and RW1, that is D4 and D5. I have told you that these bits I will be explaining you when I will be explaining you the different modes of operation. Okay, so 00 is for counter latch command. So we will see today what is counter latch command. Then read write LSB only, read write MSB only, read write LSB first, and then MSB next. Okay, and then D6 and D7, they are the they will be selecting the counter in which you are interested. So we have total 3 counters: counter 0, counter 1, and counter 2. So 0 counter selected, 1 counter selected, 10 second counter selected. Okay, and if it is 1 now this 1 is illegal for 8253, but I am using 8254. So 1 is helpful for us. So what is this 1, and where we are using this 1, that thing we'll see today itself. Okay, now with this understanding, I have told you that every bit is important as far as the control word format is concerned. Okay, what I will do, I will just share the screen to tell you about that 8254, the control word, and simultaneously you see the board also. Okay, my whiteboard. Yes, my screen is visible, the control word. Yes or no? Yes, sir. Yes. As well as the whiteboard. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So yes, now you see the whiteboard as well as the control word format. Okay, simultaneously we'll understand the remaining part of the bits. Okay, that is control latch command. Control latch command, that is D4 and D5. Okay, now whenever I am, you know that whenever I have to initialize my 8254, mostly it is used as a timer. Now I have to give the count value. Before you give the count value, you have to program your 8254. And how do you program your 8254? You program your 8254 by giving the command word or the control word. Okay, and the control word is in front of you. Okay, on the screen. Now, when you give this command word, that means you are programming your 8254. After you program this 8254, you have to give the count value also. You have to give the count value. Okay, you have to give the count value. That count values, for example, I have given you 20. Okay, I have given you 20. So, for example, if I am giving 5, so it will be written as 05 now. Now, try to understand what is read write least, what is read write LSB, what is read write MSB, what is read write LSB first, and then MSB. Okay, please try to understand the concept of that. Now here
I have already told you we can read 16 bit of counter or 16 bit of BCD value. Okay. Now if I'm seeing, if I want to put up the count value into the register into your 8254, suppose I am loading 05. If I'm loading 05, so this 5 and this 0. I want total 8. Okay. So this 0 will be treated as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, and this 5 will be treated as 0, 0, 0, 0, and this will be 0, 1, 0, 1, 1, 2, 4. Yes, 0, 1, 0, 1. So if you see here, this is 8 bit and this is 8 bit. This is 8 bit and this is 8 bit. Okay, so together it becomes 16 bits, 8 and 8. Now this is called as LSB. This is not least significant bit, but this is least significant byte. Least significant byte. As well as this is most significant byte. So do not be confused between the bit and the byte. I am talking about the byte. So this is also called as lower order byte. And this is called as higher order byte. Okay. Now I want to put up this 05. So what you will do? First you will read or write LSB. अगर मुझे चाहिए कि मुझे पहले LSB डालना है तो मैं LSB डालूंगा. मैं अगर चाहता हूं कि पहले MSB, या फिर मैं चाहता हूं कि सिर्फ LSB, या फिर मैं चाहता हूं कि जस्ट MSB, या फिर मैं चाहता हूं कि पहले LSB और बाद में MSB. Okay, so there are the three ways in which you can read or write the bits, the count value. पहले वाला, that is read or write LSB only. Second one, read or write MSB only. Third one, read or write LSB first and then most significant byte. Okay, most significant byte. So if you see the bits, that is D4 and D5, वहाँ पे क्या लिखा है? RW0 and RW1. तो अगर दोनों भी 0, 0 रहे, अच्छा 0, 0 का बाद में करेंगे, अगर एक 0 और 1 रहा तो आई एम रीडिंग और राइटिंग LSB ओनली. अगर 1, 0 रहा तो आई एम रीडिंग और राइटिंग MSB ओनली. अगर 1, 1 रहा तो आई एम रीडिंग एंड राइटिंग LSB फर्स्ट एंड MSB नेक्स्ट. So I hope you have understood. 05 count में डालूंगा so that is nothing but MSB most significant byte, LSB least significant byte, total 16 bits. This is called as lower order byte. This is called as higher order byte. Okay. So I hope you have understood this. Okay. मुझे 05 ही डालना है तो मैं सिर्फ LSB ही डालूंगा, मैं MSB नहीं डालूंगा. अगर मुझे 20 डालना है तो पहले मुझे 20 डालना है. ओके, सो आई विल बी पुटिंग फर्स्ट LSB एंड देन MSB, या फिर ओनली MSB. जब ओनली MSB होगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0. ओके, so these are the ways in which how you can read and write. These are the ways in which how you can read and write your count values into the MSB. Into your 8254 count register. Into your 8254 count register. So I hope you have understood this concept. Now comes the counter latch command. Now see what is the meaning of this. Now whenever you are reading, whenever if you want to read the count value, suppose आपका काउंटर चालू हो गया तो you know मैंने अगर काउंट वैल्यू 0.05 रख दिया तो आपका डिक्रीमेंट काउंटर हो जाएगा. तो 04 का 04 होगा, 04 का 03 होगा, 02 होगा, 01 होगा, बाद में 00 होगा. एंड सपोज इफ आई वांट टू रीड द वैल्यू, द काउंट वैल्यू मुझे रीड करना है और आपका डिक्रीमेंटिंग भी चल रहा है, देन इट माइट हैपन दैट देयर माइट बी अ ट्रांजिशन, क्योंकि आपका डिक्रीमेंटिंग भी, आपका काउंटर डिक्रीमेंट भी हो रहा है और आपको रीड भी करना है. So it might happen that your LSB and MSB transition may take place. या फिर अगर मुझे रीड करना है तो मैं 03 पे रीड कर रहा हूँ लेकिन वो तुरंत 02 हो गया. So in that case what you can do, you can store, you can latch the count value.
where you can latch the count value. How do you can latch? By sending the counter latch command. Now can you see your counter latch command? That suppose D4 and D5, these two bits are 0 0. That is nothing but counter latch command. So if I want to latch का मतलब क्या होता है? To store. Latch का मतलब क्या होता है? To store. So if I want to read the count value in between the counter is getting decremented, then it's better you store that count value in some latch register which is present at the output of each counter. मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो. At the output of every counter means counter 0, counter 1, counter 2. हर एक काउंटर के बाहर एक लैच होता है that is used to store the count value. And if I want to read that the count value during the decrementing of the counter, then that count value will be stored in at that particular latch, and from there you will be able to read. So don't you think before I read the latch, before I read the count value, that count value should be stored at the output of every counter. अगर मैं काउंटर 0 यूज कर रहा हूँ तो काउंटर 0 के जो आउटपुट में जो लैच है वहां पे मुझे स्टोर करना है. अगर मैं काउंटर 2 यूज कर रहा हूँ तो काउंटर 2 के आउटपुट में जो लैच है वहां पे मुझे स्टोर करना है. So how you are going to store them? By using the counter latch command. And how you can program your 8255 for counter latch command? You have to keep your D4 and D5 bits as 0 0. You have to keep your D4 and D5 bits as 0 0. So that is the meaning of counter latch command. So just write down one sentence about this counter latch command. सर्जन एक दो लाइन लिखो for this counter latch command. Write down fast. Write down the heading as counter latch command. If the count value is read without stopping the counter, मुझे काउंटर को स्टॉप नहीं करना है और मुझे काउंट वैल्यू रीड करना है, तो वो टाइम पे काउंटर लैच कमांड यूज होता है. सो व्हाट यू आर राइटिंग डाउन? इफ द काउंट वैल्यू इज read without stopping the counter, comma, then the count value may change between reading the LSB and MSB. Between LSB and MSB. Between LSB और MSB का मतलब होता है 04 का 03, 03 का 02, 02 का 01. So don't you think I am changing? There is a change between LSB and MSB. That is the meaning. अब यहाँ पे तो ठीक है, आपका MSB तो 00 ही है, लेकिन आपका LSB चेंज हो रहा है. लेकिन अगर ऐसा रहता था 19 का हो 20 का हो गया 19, देखो यहाँ पे 0 का हो गया 9 और 2 का हो गया 1. तो यहाँ पे देखो LSB भी चेंज हो रहा है और MSB भी चेंज हो रहा है, दोनों भी चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि मेरा काउंटर डिक्रीमेंट करेगा 20 का 19, 19 का 18, लेकिन 0 का 9 हो गया और 2 का 1 हो गया. So that is why there is a transition from LSB to MSB. That is the meaning. So what you have written? If the count value is read without stopping the counter, comma, then the count value may change between reading the LSB and MSB. Full stop. To avoid this, the counter latch command can be used. The counter latch command can be used to latch the count value. The counter latch command can be used to latch the count value to an internal latch, available at the output of, write down fast, to an internal latch available at the output of each counter before the read operation. Before the read operation. Full stop. Alternatively, full stop के बाद लिखो alternatively, comma, a separate read back control word, read back control word को underline करो, is available for latching the count value in 8254. Is available for latching the count value in 8254.
Okay, yes, I will just okay, leave it. ये बोर्ड आपको प्रॉपरली विजिबल है ना? ये प्रॉपर आपको विजिबल हो रहा है ना बोर्ड? Yes, sir. Yes. Now there is one more. Now ये तो काउंट वैल्यू मुझे रीड करना है, लेकिन काउंट वैल्यू को रीड बैक करने के लिए आपने अंडरलाइन जो किया है, रीड बैक करने के लिए यू हैव वन मोर कंट्रोल वर्ड, that is read back control word. So please draw the format of read back control word. So there is a format for read back. हमको काउंट वैल्यू को रीड बैक करना है ना, so there is a format. So format for read back control word. अभी रीड बैक कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट क्या है? सी है. So again you have this 8 bits, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is your B0, B1, B2, B3. ये B हम इसलिए लिखते हैं कि बिट 0, बिट 1, बिट 2, या फिर आप लिख सकते हैं D0 बोले तो data, the data available at this point. Okay, so B0, B2 I am writing down B4, B5, B6 and B7. Draw this fast. This is 0, this is C and T O, this is C and T1, this is C and T2, this is ST bar, this is C and T bar, this is always 1. अभी उनका सिग्निफिकेंस क्या है? Just write down. This one is always 0, always 0. For future expansion, ये जो तीनों का है. Okay, so this is to select the counter. Select counter. I will explain you this. What is select counter? Then ये important है. This is important. This is latch. ये अगर 0 है तो this is latch status register. Latch status register of selected counter. जो समझ में ना तो मुझे पूछना. और ये है, ये अगर 0 है तो दिस इज ऑल्सो लैच काउंट रजिस्टर ऑफ सिलेक्टेड काउंटर. एंड ये जो दोनों है ये हमेशा 1 रहेंगे. दिस इज ऑलवेज 1, always 1 for read back command. For read back command. I think this is not required now. Yes, here now what I have told you, that if I want to read the count value, that count value has to be stored into the internal latch which is present at the outside of every counter. So that's why you have a command latch, that is a command latch command, counter latch command. And that counter latch command actually will generate the control word. So this is a control word. अगर मुझे रीड बैक करना है काउंट वैल्यू, so you have a control word for that.
you have a control word for that. So this is a format for read back control word of 8254, word of 8254. अभी ये कंट्रोल वर्ड में क्या है, देखो क्या है, दिस बिट विल बी ऑलवेज 0. नाउ सी द कंट्रोल वर्ड जो भी बनता है वो हमें कहाँ पे भेजना पड़ता है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. आपने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें एक लेफ्ट यहाँ पे था, लेफ्ट साइड में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. आप जो भी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कंट्रोल वर्ड बनाते हो आपको वहां पे भेजना पड़ता है. So how your 8254 will come to know that this particular control word is for what purpose? So that is given by B6 and B7. ये अगर दोनों भी 1 1 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को पता चलता है कि दिस इज रीड बैक कमांड. दिस इज रीड बैक कमांड. दिस कंट्रोल वर्ड इज रीड बैक. दिस कंट्रोल वर्ड इज रीड बैक. अगर ये दोनों भी 1 1 है तो ओके. सो दैट थिंग इज अंडरस्टूड. यस. नाउ दिस बीट इज 0. दिस इज ऑलवेज 0 फॉर फ्यूचर पर्पस. तो ये हमको इतना इंपॉर्टेंस नहीं. ये दिस विल बी ऑलवेज 0. दिस इज फॉर फ्यूचर पर्पस. हमारे लिए 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट. नाउ दिस काउंटर 0, अगर ये 1 है और ये 0 0, इसका मतलब काउंटर 0 इज सिलेक्टेड. दैट इज काउंटर 1 काउंटर 0 इज सिलेक्टेड. अगर ये 1 है और ये दोनों 0 है तो काउंटर 1 इज सिलेक्टेड. अगर ये 1 है और ये दोनों 0 है तो काउंटर 2 इज सिलेक्टेड. ओके. सो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट काउंटर. ओके. तो ये रीड बैक हमको ये भी बताता है कि हमने कौन सा काउंटर सिलेक्ट किया है, बिकॉज आई एम रीडिंग बैक. ओके. तो ये बताता है कि कौन सा काउंटर है. सेकेंड थिंग, ST बार एंड CNT बार. ST बार क्या है, अगर ये ST बार 0 है, ये बीट अगर 0 है तो ये बताता है कि लैच स्टेटस रजिस्टर ऑफ सिलेक्टेड काउंटर. नाउ we will now see here, this control word can be used for two purpose. One, to latch the count register, as well as to know the status of this status of the counter. इसलिए अगर मुझे स्टेटस पढ़ना है तो दिस बिट विल बी 0. तो देखो अगर ये बिट 0 है तो लैच स्टेटस रजिस्टर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है स्टेटस, टू नो द स्टेटस ऑफ द काउंटर. और अगर मुझे काउंट वैल्यू पता होनी है तो दिस बिट शुड बी 0. दिस बिट शुड बी 0. सो कैन यू सी हियर, लैच काउंट रजिस्टर. So if I want to know the status of the counter, then you make this bit as 0. So you will have the latch status register of selected counter of selection. और कौन सा काउंटर सिलेक्टेड है वो कैसा पता चलेगा, उसके लिए ये 3 बिट है. और अगर मुझे काउंट वैल्यू पता होनी है या फिर जो लैच में मैंने काउंट वैल्यू जो स्टोर करके रखी है वो अगर मुझे स्टेटस पता होना है तो लैच काउंट रजिस्टर ऑफ सिलेक्टेड काउंटर. So then in that case this bit should be 0. Okay. So I hope you have understood this. So this bit is 0, this bit is 1. अगर ये दोनों 1 है तो 8254 को पता चलेगा कि जो कंट्रोल वर्ड आया है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में वो है रीड बैक वाला. और ये रीड बैक वाला कैसे जनरेट हुआ है, that is generated because of counter latch command. That is because of counter latch command. और counter latch command हम कब यूज करते हैं, if I want to know the count. Okay, if I want to note the count, so it is read back from 8254. Okay, so to know the status and to know the count, the respective bit should be 0 0. So write down one sentence on this. This control word has to be sent to the same control register address. This control word has to be sent to the same control register address before the read operation to latch the count value. Before the read operation to latch the count value को अंडरलाइन करो. हमको तो काउंट को रीड करना है. ओके. लेकिन रीड करने के पहले आपको ये कंट्रोल वर्ड भेजना है. कहाँ पे भेजना है, कंट्रोल रजिस्टर एड्रेस पे. और वो कौन सा कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो ब्लॉक डायग्राम में मैंने दिखाया था. ओके. बिफोर द रीड ऑपरेशन टू लैच द काउंट वैल्यू, फुल स्टॉप. द कंट्रोल रजिस्टर आइडेंटिफाइज दिस कंट्रोल वर्ड. द कंट्रोल रजिस्टर आइडेंटिफाइज, मैंने वही बताया था ना कि वो 8254 को कैसा पता चलेगा कि ये कंट्रोल वर्ड क्या रिलेटेड है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ B6 एंड B7. ये बताता है कि दिस इज अ रीड बैक. तो उसी के लिए लिखो, द कंट्रोल रजिस्टर आइडेंटिफाइज दिस कंट्रोल वर्ड
from the value of bits B6 and B7, from the value of the bits B6 and B7. Next, in the next sentence, write down that sentence is important. These read back control word can be used. These read back control word can be used to latch one or all the counters, to latch one or all the counters, or to latch the status register, or to latch the status register, or to latch the status register. Full stop. At any one time, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है. At any one time, comma, we can latch either the count value by programming the bit B5. ये देखो B5. At any one time, we can latch either the count value by programming the bit B5 as 0, because here it is bar है वहाँ पे, as 0, or latch the status register, by programming the bit B4. ये देखो B4 status, B4 as 0. तो दोनों भी एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते. आपको काउंट वैल्यू तो भी पढ़ना है या फिर आपको स्टेटस रजिस्टर से स्टेटस तो भी देखना है. तो दोनों भी एट अ टाइम 0 नहीं रहेंगे. ईदर ऑफ दैट विल बी 0. फुल स्टॉप. ये लाइन को अंडरलाइन किया, फुल स्टॉप लिखो. द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटस रजिस्टर ऑफ ईच काउंटर is as shown below. अभी स्टेटस रजिस्टर का भी we have a format. The format of the status register of each counter is as shown below. Yes, so see here the format of status. ये तो हो गया रीड बैक का कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट. अभी मैं बता रहा हूँ स्टेटस रजिस्टर का फॉर्मेट. उसका भी फॉर्मेट होता है, क्योंकि मुझे स्टेटस पढ़ना है. तो वो स्टेटस में क्या क्या होता है वी विल सी. तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन? द फॉर्मेट ऑफ स्टेटस वर्ड, फॉर्मेट ऑफ status word of each counter of 8254. और उसका फॉर्मेट देखो क्या है. सी द फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is your BCD. This is M0, M1, M2. This is RW0, RW1. This is null, and this is out. Already we know BCD, we know M0, M1, M2, we know WR0, RW0, RW1. This is important. Null is what? A1 on this bit, A1 on this bit indicates that the counter value is 0. और ये क्या बताता है? आउट. Level of the output pin. Level of the output pin. Yes. अभी मुझे काउंटर के स्टेटस पता होने चाहिए. ओके.
आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटस रजिस्टर ना. ये क्या है? ये फॉर्मेट ऑफ द स्टेटस रजिस्टर. पहला वाला बिट. ओके, दिस इज अगेन B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 and this is B7. So you know this BCD. ये BCD क्या बताता है? अगर 1 है तो यू आर यूजिंग BCD, अगर 0 है तो आप यूज कर रहे हो बाइनरी, जो हमको पहले भी पता है. ओके, M0, M1, M2 ये बताता है कि आपका काउंटर कौन से मोड में काम कर रहा है. तो ये तीनों का भी कॉम्बिनेशन आपको पता है. मॉड 0, मॉड 2, मॉड 1, मॉड 2, मॉड 5 तक. RW0, RW1 ये भी आपको पता है. यहाँ पे काउंटर कमांड लैच का यहाँ पे जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि हमको सिर्फ स्टेटस पता होना चाहिए. तो स्टेटस क्या हो सकता है? 3 ही हो सकता है. एक है 01, दूसरा है 10 और तीसरा है 11. 01 का मतलब होता है LSB ओनली. 10 का मतलब होता है MSB ओनली. 11 का मतलब होता है LSB फर्स्ट और बाद में MSB नेक्स्ट. यहाँ पे 00 की बात आएंगी नहीं, वो 00 की बात वो कंट्रोल वर्ड में आएंगी. यहाँ पे तो ये तो फॉर्मेट है स्टेटस वर्ड का. तो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन से मोड में काम कर रहा है काउंटर, और ये बताएगा कि मैं LSB रीड या राइट कर रहा हूँ, या फिर MSB, या फिर LSB पहले और बाद में MSB. तो ये 01, 10, 11 ही आएंगे. 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा. ओके, ये नल, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या बताता है? आपका काउंटर स्टार्ट हो गया डिक्रीमेंटिंग करना. सपोज मैंने काउंट में क्या लोड किया? 05. तो 05 का 04, 04 का 03, 02, 01, 00. जब वो 00 होगा ये बीट 1 हो जाएगा. तो डोंट यू थिंक मुझे स्टेटस पता चल रहा है सब? ओके, थ्रू द स्टेटस का वर्ड. तो वो जब 0 होता है काउंट वैल्यू, तब ये नल वैल्यू, ये बीट 1 होता है. ये बीट को क्या सिग्निफिकेंस क्या है? नल. तो नल इज व्हाट? 1 on this bit indicates that the counter value is 0. तो डिक्रीमेंट करते करते वो 0 पे आ गया, तो ये 1 हो गया. अब ये क्या बता रहा है? इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि हर एक काउंटर पे 3 सिग्नल्स होते हैं. एक क्लॉक, एक गेट, दूसरा आउट. क्लॉक इनपुट होता है, गेट इनपुट होता है, और आउट जो होता है वो आउटपुट होता है. तो व्हेनेवर आपका कभी भी काउंट वैल्यू जब 0 हो गया, तब आपका ये आउटपुट भी 1 हो गया. यानी वो आउटपुट जो रहता है ना, वो 1 हो जाता है. जब तक ये काउंट वैल्यू 0 नहीं होता है, तब तक वो आउटपुट पिन 0 रहता है, लो रहता है. और जब ये काउंट वैल्यू 0 हो गई, तो आउटपुट 1 हो गया. तो यहाँ पे 1 आ जाता है. तो लेवल ऑफ द आउटपुट पिन, ये लेवल ऑफ द आउटपुट पिन, इसका मतलब है अगर काउंट वैल्यू 0 नहीं तो यहाँ पे 0, और काउंट वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे 1. दैट इज द मीनिंग. तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है. यहाँ पे 1 का मतलब होता है कि आपकी काउंट वैल्यू 0 पे पहुंच गई है. ये 0 है, इसका मतलब ये है कि काउंट वैल्यू 0 तक नहीं पहुंची है. ये नल अगर 0 है, इसका मतलब आपका काउंट वैल्यू 0 पे नहीं पहुंचा है. और ये अगर 1 है, इसका मतलब काउंटर वैल्यू 0 पे आ गई है. तो ये सिर्फ बताता है, एक्चुअली ये आउटपुट देता है, दैट इज आउटपुट पिन. तो वो यहाँ पे स्टेट करता है. तो आउटपुट में एक्चुअली आपको 1 या 0 आता है. तो 0 जब तक है, जब तक काउंटर वैल्यू 0 नहीं है, और काउंटर वैल्यू जब 0 हो गई, तब आउटपुट पे 1 आ गया. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस format of status word of each counter of 8254. Is it clear now? Any questions, any doubts? Yes, do you have any questions, any doubt? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. So after this, now we have the different modes of operation of 8254. So I have told you that I will be taking some. So today I will be just taking 2 only. Then we will move to DMA 8257. The rest of the operations you can do by yourself, provided you know mod 0 and mod 1. तो मैं अभी आपको mod 0 और mod 1 सिखाऊंगा. ओके,
mod 0 and mod 1 I will explain you. Okay, but before that, try to understand that you have the gate, which is the input pin. You have the clock, which is also the input pin, and you have output pin, which is the output. These are the names of the signals I am talking about. These are the names of the signals. I have told you that this is the gate. Now, whenever your gate is high, that means आपका काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है, आपका काउंटर कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रहा है, और आपको काउंटर को रोकना है, यू मेक दिस एज 0, यू मेक दिस एज गेट एज 0 बिकॉज इट इज इनपुट पिन. तो जब जब ये गेट को 1 दिया है, आपका काउंटर डिक्रीमेंट करते जाएगा, और अगर आपने 1 का 0 कर दिया, तो जब तक वो 0 है तब तक वो काउंटिंग नहीं करेगा, तब तक वो रुकेगा. ओके, सो दैट इज द मीन. सेकेंड थिंग, द क्लॉक. आपको पता है द क्लॉक बेसिस पे ही आपके क्लॉक बेसिस पे ही डिक्रीमेंटिंग होता है. फॉर एवरी क्लॉक, फॉर एवरी इनपुट क्लॉक, योर काउंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1. एक क्लॉक पल्स डिक्रीमेंट बाय 1, दूसरा क्लॉक पल्स डिक्रीमेंट बाय 1, तीसरा क्लॉक पल्स डिक्रीमेंट बाय 1. so this will go on. so that is because of input clock. okay, and output का काम क्या होता है? so this output will be high whenever your count value reaches to 0, and till it reaches to 0, your output will be 0. Okay, now with this understanding, we are going to see the different modes of operation. So we will see mod 0 and mod 1. Okay, so I will share the screen and we will see this. My screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. Now I want everyone to pay attention. अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको बाकी के मोड भी नहीं समझ में आएंगे. ओके, तो आपको जो कुछ डाउट है मुझे यहाँ पे पूछ लेना, और जो मैं सिखाऊंगा वो बराबर देखो. ओके, now we have to understand mod 0, that is called as interrupt on terminal count. Now this terminal count का क्या मतलब होता है? This terminal count का मतलब होता है कि जब आपका काउंट वैल्यू 0 पे पहुंच गया, तो टर्मिनल काउंट मीन्स 0. ओके, और मॉड 0 का क्या नाम है? इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट. यानी जब काउंटर डिक्रीमेंट होते होते 0 हो गया, 0 बोले तो टर्मिनल काउंट, तब इंटरप्ट आ गया. तो वो इंटरप्ट आ गया बोले तो क्या है? वी विल सी नाउ. और वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय 3 केसेस. पहला केस देखो क्या है, नॉर्मल ऑपरेशन. दूसरा केस क्या है, जब गेट को मैंने डिसेबल किया है. और तीसरा केस क्या है, अगर मुझे नया काउंट वैल्यू डालने का है. ओके, तो ये पहले केस में हमको 4 ही लाइंस देखने हैं, सेकेंड केस में भी वही 4 ही लाइंस देखने हैं, और थर्ड केस में वही 4 ही लाइंस देखने हैं. ओके, सो दिस इज अ टाइमिंग डायग्राम. तो हमको देखना है कि हर एक रेस्पेक्ट टू टाइमिंग में क्लॉक पल्सेस में क्या क्या हो रहा है. तो with this understanding, we will start with the first one now. That is a normal operation. Okay, normal operation, ये देखो क्या है, WR bar. तो राइट ऑपरेशन, है. सो आई वांट टू राइट डाउन द कमांड वर्ड. सब लोग कान खोल के सुनो व्हाट एवर आई एम सेइंग नाउ. ओके, नाउ टू इनिशियलाइज the initialization procedure for each mode is almost same.
इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर होता है ना, हर एक मोड के लिए सेम होता है, बट द आउटपुट ऑफ ईच मोड विल बी डिफरेंट. आउटपुट ऑफ ईच मोड विल बी डिफरेंट. नाउ टू इनिशियलाइज अ काउंटर there are only two steps. To initialize your counter there are only two steps. पहला स्टेप क्या है, write a control word into the control register, और दूसरा स्टेप है write a count value in the count register. write the count value into the count register. ओके, तो अगर मुझे काउंटर को इनिशियलाइज करना है या फिर मुझे अगर काउंट वैल्यू लोड करना है काउंटर में ऑफ 8254, मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी. पहली ये करनी पड़ेगी कि कंट्रोल वर्ड को मुझे कंट्रोल रजिस्टर में डालना पड़ेगा. कंट्रोल वर्ड कौन सा, जो सबसे पहले वाला मैंने बताया था, रीड बैक कंट्रोल वर्ड के पहले वाला, वो मुझे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डालना पड़ेगा, कंट्रोल रजिस्टर में डालना पड़ेगा, और बाद में मुझे काउंट वैल्यू काउंट रजिस्टर में डालना पड़ेगा. ओके, तो ये दो जब मैं करूंगा, लेकिन ये वन बाय वन आता है, पहले कंट्रोल वर्ड और बाद में काउंट वैल्यू. So don't you think I am writing down the control word as well as I am writing down the count value? तो वही यहाँ पे किया है, वही यहाँ पे किया है. ये जो दिख रहा है CW is equals to 10, ये दिख रहा है CW is equals to 10. Just a minute. Yes, ये दिख रहा है CW is equals to 10. Now this ये वाला जो कंट्रोल वर्ड है ना, इसकी बात कर रहा था मैं. तो पहले ये कंट्रोल वर्ड को आपको डालना है कंट्रोल रजिस्टर में, और बाद में काउंट वैल्यू को डालना है काउंट रजिस्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है. क्लियर नाउ. देखो पहले कंट्रोल वर्ड को डाला है मैंने, डाला इसका मतलब आई एम राइटिंग एंड यू नो द WR बार दैट इज एक्टिव लो. तो ये देखो पहले हाई था बाद में लो हो गया, पहले हाई था बाद में लो हो गया, और जब लो हो गया आई एम राइटिंग डाउन द कंट्रोल वर्ड. अब ये कंट्रोल वर्ड जो बना है वो 10 बना है, कंट्रोल वर्ड जो बना है वो 10 बना है. तो हम जो 8 बिट्स यूज कर रहे हैं ना, वो 8 बिट्स का फॉर्मेट जो भी बना है वो 10 बना है. ओके, एंड आफ्टर आई write down the control word I have to load the count value. see here क्या लोड किया है 4, LSB लोड हुआ है 4. so can I say I am loading the count value as 04? yes, I am loading the value as 04. that means only LSB will be loaded, only LSB will be loaded. okay, तो ये देखो राइट ऑपरेशन में ये दो चीजें हो गई. ये होने के बाद नाउ दिस इज अ क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स के हिसाब से बाकी के सब चलेंगे. ओके, सो एवरीवेयर यू विल हैव दिस क्लॉक पल्स. ओके, मैं फिर से करके रखता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये चार, ये चार, ये चार हम जो पढ़ रहे हैं पहले नॉर्मल ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में हम गेट डिसेबल होने के बाद क्या होगा वो देखेंगे, और बाद में अगर हमको बीच में न्यू काउंट डालना है तो तब हमको देखना है. ठीक है, तो पहले देखो क्या है, सबसे पहले कंट्रोल वर्ड को डाला. अभी मेरा फॉर्मेट 10 है इसलिए 10 डाल दिया, लेकिन मुझे काउंट वैल्यू 04 डालनी थी तो LSB ओनली, तो 4 आ गए. अभी ये क्लॉक के हिसाब से सब काम करेंगे. अभी आपका देखो गेट क्या है, आपका गेट इज व्हाट, योर गेट इज नाउ 0, योर गेट इज 0. ओके, योर गेट इज 0. नाउ योर here what yes, your gate this is not 0, this is 1. okay, this is 1. so I have kept this 1 throughout मेरा 1 है, मैंने बीच में कभी भी इसको 0 नहीं किया, थ्रू आउट 1 है. तो जब तक वो 0 है तब तक आपका काउंटर डिक्रीमेंट होते जाएगा. तो आपका काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पे समझ में आ रहा है, वो देखो आउटपुट पिन में समझ में आ रहा है.
अभी देखो आपका आउट है 1, इनिशियली वो 1 रहेगा, इनिशियली वो 1 रहेगा। जब आप कंट्रोल वर्ड और LSB 04 डालते हो, जब आपने 04 डाल दिया, जब आपने 04 डाल दिया तो देखो 04 ये पोजीशन पर डाला, सो इट विल टेक 1 मोर क्लॉक पल्स टू लोड 04 वैल्यू। देखो ये पर्टिकुलर टाइम पे आपने 04 लोड किया, लेकिन वो लोड करने को उसको और एक क्लॉक पल्स लगा, इसलिए देखो वो 04 तुरंत, देखो तुरंत नहीं आया 04, देखो यहाँ पे आया। आपने 04 यहाँ पे राइट किया था, यहाँ पे राइट किया था, लेकिन उसको एक क्लॉक पल्स लगा लोड होने को, और बाद में ये 04 जो लोड किया था वो देखो यहाँ पे आया। यहाँ पे आया का मतलब क्या है, आपका आउटपुट विल बी 0 वेन एवर आपने तो राइट किया 04, तो जब राइट होगा तब आउटपुट तुरंत 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, आपका आउटपुट 1 कब होता है, जब काउंट वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, जब काउंट वैल्यू 0 होती है, तो हम आगे देखेंगे कि जब काउंट वैल्यू 0 हुई तो उसका क्या हुआ। लेकिन इनिशियली वो आउटपुट हाई होता है, लेकिन तुरंत वो 0 पे जाता है जब आप कंट्रोल वर्ड लिखते हो और आप LSB लिखते हो, आप काउंट वैल्यू लिखते हो। तो देखो इसलिए वो 1 का 0 हो गया। अभी देखो वो 0 है, कब तक 0 है, देखो आपकी काउंट वैल्यू यहाँ पे आ गई 04। अभी यहाँ से डिक्रीमेंट होगा, 04 का 03, 03 का 02, 02 का 01, 01 का 00। अभी देखो 0 हो गया, देखो आउटपुट 0 से तुरंत ऊपर चला गया। तो कहने से ये आउटपुट 1 कब होता है, जब आपका काउंट वैल्यू 0 पे जाता है, आपका काउंट वैल्यू 0 पे जाता है। और ये याद रखना, दिस हाँ 0 पे होता है, लेकिन आपका देखो गेट अभी भी 1 ही है, तो ये डिक्रीमेंट अभी भी करेगा। तो 0 का क्या होगा, 00 का होगा FF, FF का क्या होगा, FF का होगा FE, और FE का क्या होगा, आगे चल के अगर देखना है तो उसका होगा FD, FD। तो ये सब डिक्रीमेंट ही हो रहा है। जब तक आपको ये काउंटिंग रोकने का नहीं है, तब तक ये गेट को हाई रखने है, और ये अगर आपको काउंट को रुकना है तो ये 1 का आपको 0 करना है, और ये 1 का जब 0 हो गया तो आगे काउंट नहीं करेगा, वो रुक जाएगा, वहां पे ही रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेशन। अब सेकंड में देखो क्या हो रहा है, गेट डिसेबल किया मैंने, गेट डिसेबल किया। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपने कंट्रोल वर्ड को राइट किया, LSB, अभी यहाँ पे मैंने काउंट वैल्यू 03 डाली है, ये क्लॉक तो वही हमेशा रहने वाला है। अभी देखो आपका गेट पहले हाई है, ओके हाई, आपका आउट इनिशियली भी हाई है, लेकिन आपका जब आपने 3 डाउनलोड किया वो तुरंत 3 नहीं आता है, इसको और एक क्लॉक पल्स लगता है और उसके बाद 03 आता है। ओके, तो आपका आउटपुट तुरंत 0 हो जाता है जब आपका कंट्रोल वर्ड और काउंट राइट हो जाता है। और ये देखो कब तक 0 है, जब तक वो 0 नहीं होता है। 0 कब तक है, जब तक वो 0 पे नहीं जाता। क्लियर ना, 03, 02, अभी ये देखो 02 3 बार आया। अब ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस गेट, बिकॉज ऑफ दिस गेट। मैंने बोला था ना, आपको अगर आपका काउंटिंग को स्टॉप करना है तो गेट आपको 0 करना पड़ेगा। तो 0 करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू आर डिसेबलिंग द गेट। डिसेबलिंग द गेट मीन्स यू हैव मेड द गेट एज 0। तो 0 जब भी होगा वो उसी काउंट पे रुक जाएगा। तो 02, 02, 02, देखो 0 से फिर से 1 चला गया, और 02 का क्या हो गया, 01, 01 का क्या हो गया, 00। और जब वो 01 का 00 होता है तब योर आउटपुट विल बिकम 1 टू इंडिकेट दैट काउंट वैल्यू हैज रीच्ड 00। ओके, दैट इज अ केस। अभी थर्ड वाला देखो, अगर मुझे न्यू काउंट डालना है, न्यू काउंट डालना है बोले तो पहले मैंने 03 डाला और कुछ देर के बाद फिर मैंने 02 भी डाल दिया। कुछ देर के बाद मैंने 02 भी डाल दिया। ओके, देखो तो क्लॉक सेम रहेगा। मेरा गेट हाई है थ्रू आउट, माई गेट इज हाई थ्रू आउट। अभी देखो गेट को क्या आउटपुट क्या, इनिशियली 1 रहेगा, बाद में 0 हो जाएगा,
जीरो कब होता है? जब कंट्रोल वर्ड और काउंट वैल्यू हम लोड करते या फिर राइट करते। अब ये 03 है, वो कहाँ पे देखेंगे? वो यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उसको एक क्लॉक पल्स लगता है डाउनलोड करने को या फिर लोड करने को। तो देखो ये 03 है, वो यहाँ पे आई। 03 का 02, 02 का 01, 01 का, अभी ये देखो आपने 02 डाला, ये 02 बाद में कब रिफ्लेक्ट करेगा? 1 क्लॉक पल्स के बाद। यानी ये देखो ये 02 है ना, वो यहाँ पे आ, ये देखो यहाँ पे आ। तो 03 का 02 था, 02 का 01 था, 01 का 00 होना चाहिए था, लेकिन आपने बीच में ही नया काउंट डाला, न्यू काउंट, तो वो हो गया 02। बाद में ये 02 को लेके वो आगे डिक्रीमेंट करते जाएगा। तो 02 का 01, 01 का 00, ओके। और जैसे 00 हो गया, यू हैव दिस पर्टिकुलर आउट, ओके। अभी इसको इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट क्यों कहते हैं? प्लीज पे अटेंशन। इसको इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट क्यों बोलते हैं? कि देखो, जब भी 0 हो गया तभी तुरंत आउटपुट 0 से 1 हुआ, जब भी 0 हुआ आउटपुट 0 से 1 हुआ, जब भी 0 हुआ आउटपुट 0 से 1 हुआ। सो ये आउटपुट हम यूज कर सकते हैं टू इंटरप्ट द प्रोसेसर, ये आउटपुट हम यूज कर सकते हैं टू इंटरप्ट द प्रोसेसर। मैंने बताया था ये जो टाइमर हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं यूज? अगर प्रोसेसर टाइम बेस्ड कोई ऑपरेशन करना चाहता है, प्रोसेसर टाइम बेस्ड ऑपरेशन करना चाहता है का मतलब क्या है? अगर प्रोसेसर को चाहिए कि मैं 5 सेकेंड्स के बाद ये काम करूंगा, तो 5 सेकेंड्स उसको कौन बताएगा? तो 5 सेकेंड्स होने के बाद ये आउटपुट जो पिन है ना, वो बताती है, क्योंकि वो 0 से 1 हो गई, 1 हो गई बोले तो वो इंटरप्ट करेंगी प्रोसेसर को, 8086 को, और प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि 5 सेकेंड्स हो गए, अभी मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो आई कैन यूज दिस आउटपुट पिन टू इंटरप्ट माय प्रोसेसर 8086। that is the meaning of this mode, which is interrupt on terminal count. Yes, any question? सर हाँ सर मैंने अटेंडेंस ले लिया है, मेरा नेटवर्क जाएगा अभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। Yes, I will take more 5 minutes. Students, do not leave. I will take more 5 minutes क्योंकि मैंने मोड 0 दिखाया, मुझे मोड 1 भी बताना है, okay? So if you have understood this, if you don't have any questions, or else if you have question, please ask, so that otherwise I will take the next mode. See, mod 0, mod 1 मैंने ले लिया, the remaining mods you do as a homework, okay? And tomorrow is the last class for me, because thereafter you have a test. So tomorrow I will be able to complete DMA and DAC, okay? और अगर जो कुछ नहीं होता तो I will be giving you the recording, okay? So shall I proceed further? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. Now see here, mod 1 का नाम क्या है? हार्डवेयर retriggerable one shot. So ये जो particular mode है, that is related with the monostable multi-vibrator one shot. So I hope you have studied this 555 IC, monostable multi-vibrator one shot. Okay. So you have the transition from 0 to 1, and that transition from 0 to 1 is associated with the gate, okay? So I will explain you what is that. So here also we have 3 cases: normal operation, re-triggering. ये ट्रिगरिंग वर्ड को अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा ये ट्रिगरिंग क्या है, ओके? सो थर्ड केस है न्यू काउंट. See, I will not take much of the time. Please be there. Do not leave. So normal operation, re-triggering, and new count. These are the 3 cases. And again, 4 pins are taking part in this. So we will see one by one. This is also simple. मैंने पहले बताया था, अगर आपको 1 और 2 मोड पता चल गया तो बाकी के मोड आप फटाफट समझ में आएंगे, इसलिए I am giving you as homework. See here again. Now your control word, what you are writing, your control word, and suppose the format comes to be 112. ये आपने देखना 112 12 का मतलब क्या है, हर एक बिट्स को वहां पे पुटअप करो एंड देन सी व्हाट इज 1 2, एंड यू आर लोडिंग 3, ओके? तो क्लॉक तो हर तरफ रहने वाला है, ओके? अभी आपका ये गेट देखो क्या है, अभी आपका गेट, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन दिख रही है,
और ये जो डार्क लाइन दिख रही है इसका क्या मतलब है समझ लो, यहां से यहां तक। ओके, ये जो डॉटेड और ये दिख रहा है इसका मतलब क्या है, आपका गेट पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, आपका गेट, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you will not see this explanation in any of the book. Okay, please, so please attention, pay attention on this. So if your gate अगर 1 रहे या फिर 0 रहे, लेकिन ट्रिगर करने के पहले, ट्रिगर का क्या मतलब होता है, ट्रिगर बोले तो दिस इज कॉल्ड एज वन शॉट, यानी 0 से 1 ट्रांजिशन, 0 से 1 ट्रांजिशन फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसलिए तो हम ट्रिगर बोलते। ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगर, 0 to 1 transition for a smaller duration, so this is called as a triggering। तो ये जो गेट है ये ट्रिगरिंग का काम करता है। तो अगर उसके पहले, ट्रिगर देने के पहले अगर आपका गेट 1 है या फिर 0 है, अगर 1 है तो ट्रिगर देने के पहले उसको 0 पे लाओ, और अगर 0 है तो ठीक है। 0 अगर 1 है तो 0 पे इसलिए लाना है क्योंकि मुझे 0 से 1 ट्रिगर देना है। ये देखो ना, 0 से 1 ट्रिगर, ट्रिगरिंग जब देते इसका मतलब 0 से 1 ट्रांजिशन जाना है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 to 0 नहीं, ट्रिगरिंग बोले तो 1 to 0 नहीं, 0 to 1, 0 to 1। तो आपका गेट ट्रिगर देने के पहले अगर 1 है तो उसको 0 पे लाओ और बाद में ट्रिगर करो, ट्रिगर हो गई। ये देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रिगर हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रिगर हुआ, तो बाद में वो 1 पे भी चल सकता है और 0 पे भी चल सकता है। लेकिन फिर से अगर मुझे ट्रिगर देना है तो फिर से वही बात, अगर 1 पे है तो उसको 0 पे लाओ, और अगर 0 है तो 0 पे चलेगा। ओके, एंड देन यू गिव द one triggering one shot, so that is why 0 to 1 is called as a trigger or it is called as one shot, it is called as a one shot। अभी ये देखो ट्रिगर हुआ तो क्या क्या हो रहा है, सी ऑल ऑफ यू नो, आपका कंट्रोल वर्ड आ गया, आपका काउंट आ गया, आपका आउटपुट 0 पे रहने दो या फिर 1 पे रहने दो, आपका आउटपुट 0 पे रहने दो या 1 पे रहने दो। ओके, नाउ सी हियर, आपका गेट भी कुछ भी रहने दो, व्हेन यू हैव लोडेड द काउंट वैल्यू, आपको मैंने क्या बताया था, आपका गेट जब भी 1 होगा तभी वो डिक्रीमेंट करेगा, आपका गेट जब भी 1 होगा वो डिक्रीमेंट करेगा। तो देखो, काउंट वैल्यू लोड किया, लोड होने के बाद आपने ट्रिगर दिया, तो वो ट्रिगर होने के बाद यू सी हियर 03 कम्स हियर, 03 कम्स हियर। ओके, सो your count value will be available at the output whenever there is a trigger, whenever there is a trigger। तो देखो, आपकी जो काउंट वैल्यू आ गई तो आपका जो आउटपुट है वो 1 रहने दो, 0 रहने दो, वो तुरंत 0 आ जाता है, वो तुरंत 0 आ जाता है। अभी यहाँ से देखो क्या है, 03, 03 का 02, 02 से 01, 01 से 00, और जब वो 00 होता है तो आपका आउटपुट है वो फिर से 0 से 1 चला गया, 0 से 1 चला गया, इसका मतलब आउटपुट आपका 1 है, इसका मतलब काउंट आपका 0 हो गया, और वो 1 रहेगा, वो 1 रहेगा जब तक आपका नया काउंट नहीं आता या फिर आपका नया ट्रिगर नहीं आता। अभी ये देखो, फिर से आपने एक ट्रिगर किया, लेकिन आपने जो पहले लोड किया था 03, वो सेकंड ट्रिगर में भी फिर से वही 03 आने वाला है, और आपका आउटपुट जो 1 हुआ था वो फिर से 0 आने वाला है, और ये फिर से चलने वाला है। तो ये जो साइकिल दिख रही है ना आपको, ये भी आगे वही चलने वाली है। तो यहाँ पे मुझे यही बताना है कि आपका गेट जो पहले इसकी जो पहले वाला था मॉड 0, उसमें गेट आपने कंटिन्यूस 1 रखा था, यहाँ पे कंटिन्यूस 1 रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिगर देना है, ट्रिगर दो और काउंट वैल्यू को डिक्रीमेंट करो जब तक वो 0 नहीं होता है। 0 होने के बाद फिर से ट्रिगर दो, फिर से काउंट है जो पहले आपने लोड किया था वही सेम काउंट फिर से डिक्रीमेंट होते जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू। अगर आपको फिर से डिक्रीमेंट करना है, फिर से यहाँ पे कहीं तो भी आगे चल के फिर से ट्रिगर करो, एंड दिस विल गोज ऑन, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल ऑपरेशन। अभी रीट्रिगरिंग में क्या हो रहा है, वही सेम केस है, यहाँ पे मैंने 02 को लोड किया है, बट यहाँ पे इफ यू सी प्रॉपरली, हियर आई एम यूजिंग द ट्रिगर, हियर आई एम यूजिंग द ट्रिगर, ओके, एंड 02 आपने जो लोड किया था, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, देयर शुड बी 03 बिकॉज हियर 03 इज अपीयरिंग हियर। नाउ 03 से 02, 02 से लेके 01, 01 से लेके देयर इज वन मोर। सो आपने क्या किया, 01 को 00 पे लाने के पहले फिर से ट्रिगर किया, so that is why it is called as a re-triggering।
आपने उसको 0 पे नहीं आने नहीं दिया. So there is re-triggering. Again with re-triggering, again 03 will be loaded, and 02, 03 से 02, 02 से 01, 01 से 0. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिगर वन शॉट नहीं है, यहाँ पे ट्रिगर नहीं है, इसलिए 00 आ गया. और अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट देखो, ये आपका आउटपुट 0 था, वो यहाँ पे अगर 0 रहता तो 1 हो जाता था, लेकिन फिर से 03 लोड हुआ, और फिर से वो देखो लास्ट में जब 0 तब जाके वो 0 से 1 हो गया. तो दैट इज कॉल्ड री-ट्रिगरिंग. अब अगर मुझे न्यू काउंट डाला तो तब क्या होता है, ये देखो, इनिशियली मैंने 03 डाला, बाद में मैंने 04 डाला, और मैंने देखो ट्रिगर कहाँ पे किया, एक ट्रिगर यहाँ पे किया. तो ये ट्रिगरिंग करने के बाद ये 0 था, ओके, 03 था, तो दैट विल कम हियर. तो यहाँ पे फिर से करेक्शन है, यहाँ पे 02 चाहिए शायद, तो देयर शुड बी 02. तो 02 से 01, 01 से 00, ओके. बाद में जब तक मैं फिर से शॉर्ट नहीं देता हूँ या फिर ट्रिगर नहीं करता हूँ, तो वो FF फिर से डिक्रीमेंट होगा, 0 से FF, FF से FE. और जब मैंने फिर से 1 ट्रिगर दिया, तो सेकंड मैंने क्या लोड किया, 04. so you will see 0 will appear here, then it will continue. So this is when new count is loaded, this is when re-triggering is happening. री-ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि 0 होने के पहले फिर से मैंने री-ट्रिगर किया, 0 नहीं होने दिया, और ये दिस इज नॉर्मल ऑपरेशन. ओके, so with these two modes I think you will be able to understand the remaining modes also. okay, ये अगर आपको समझ गया mod 0, mod 1, और आपको कैसे टेबल टाइमिंग डायग्राम को कैसे रीड करना है, और इंपॉर्टेंट लाइन कौन से है, WR बार, क्लॉक, गेट एंड आउटपुट, ये 4 इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आपको समझ में आया कि कैसे रीड करना है, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग मोड. और ये आपको जो दिखा है ना बीच बीच में n इज नथिंग बट नॉट एप्लीकेबल, या फिर नथिंग इज लोडेड. लोडिंग कब होता है, एक क्लॉक पल्स के बाद. आपने यहाँ पे डाला तो तुरंत यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं, एक क्लॉक पल्स पूरा होने देता है और दूसरे क्लॉक पल्स में वो आता है लोडिंग. ओके, सो दिस इज not applicable या not loaded, that is the meaning. okay, and stands for that. So with this understanding you will be able to understand the other modes, that is rate generator, square wave mode. square wave में सिर्फ square wave मिलेगा आपको. This is software triggered strobe. So everywhere you will see the 4 signals, everywhere you will be able to see the 4 signals, and you have to read these signals properly and understand. okay, so with this we will stop. In the next lecture I will be talking about DMA controller. आज ही start करने वाला था but not possible. In the next lecture I will be starting with the DMA controller, and if time permits I will go with the DAC. Otherwise I will be sharing the video lectures. okay, so if you have any questions you can ask, others can leave. Thank you. Thank you, sir.